As part of the Indian Rural Colloquy, with a focus on youth, we acknowledge that youth of our great state, constituting 26% of the population, play a pivotal role in driving the economy and shaping Jharkhand's destiny. However, we must address the structural barrier they encounter, which are shaped by geography, social disparity, gender and inequalities, and economic gaps. Today, we mark a significant step as we unveil the report on structural barrier faced by rural youth, a collaborative effort by XISS and TRIF. This session not only reveals the report, but also sparks a dialogue among government officials, industry leaders, academia, and the youth themselves. Through collective effort, we will devise effective strategy and mitigate these barriers and create opportunities and possibility of growth and prosperity in Jharkhand. Now, I kindly request Mr. Abhishek, practitioner TRIF, to guide us on the way forward for this session. Mr. Abhishek. So, as Amita was telling that the issue of structure barriers are very complex and deep-rooted. Especially, it is very sad when someone is perceived to be doomed by birth. It is very important to understand the root cause of this and identify the places where they get manifested. So we had taken a pilot study in Ramgarh, and no other platform is better than this to share the details. Hence, I would request Dr. Pradeep, who is the Assistant Director of XISS, also an Associate Professor. He happened to be a key researcher as well as guide for this research and have deep understanding on this topic. So I would request Father Pradeep to please come on stage and take this discussion forward. Good afternoon, everybody. Good afternoon, and thank you, Abhishek. First of all, I would like to invite our panelists on the dais before our proceeding starts. May I request Sri Lokesh Mishra, IS. Please clap and welcome. Then Dr. DKC, please welcome him. Yeah. Mr. Rajkumar Poddar, let us welcome him. Is he here? He has not arrived yet. Mr. Meenakshi Kumar, let's welcome him. Mr. Manish Kumar, Manish has not arrived yet. Then we have Abhishek Urao, let's welcome him. Who are absent? Yeah. I would like to give short introduction about our panelists. First, Shri Lokesh Mishra, IS. He is a Tribal Welfare Commissioner, Department of Welfare, Government Jharkhand. Shri Lokesh Mishra is currently working as Tribal Welfare Commissioner, Department of Welfare, Jharkhand. He has completed his graduation in chemical engineering from prestigious IIT Delhi in 2012. He has served as DDC Koderma, SDO Ranchi before being appointed as Tribal Welfare Commissioner. He has played major role in streamlining CMEGP
program and also supported many innovative ideas. Let us welcome him. Sir, welcome. Dr. D.K. Singh, Vice Chancellor, Jharkhand University of Technology. Dr. D.K. Singh was the first Vice Chancellor of Binod Bihari Mahato, Kolanchal University, 2017 and 2018, as he was given an additional charge alongside being the Director of BIT Sindri, and recently IIT ISM appointed him as Senate member. Dr. D.K. Singh had taken charge of BIT Sindri in 2017 and made the institution the second best engineering college in the country as per the 2022 survey of the All India Council for Technical Education, ICT, New Delhi. Besides it, BIT Sindri emerged first in East Zone Engineering College Ranking Competition 2022, first prize in the IFAT India Trade Fair University Challenge competition held in Mumbai in October 2022, and became a champion in Eastern India Geo-Mining Technocrats Fest held at NIT Rourkela 2023. Yeah, but it is just short. Then we have Mr. Rajkumar Poda, President MSME Jharkhand PSDCC. Okay. As I am directed, there is a paucity of time, therefore immediately we will start the proceedings. Thank you, Dr. Pradeep. So with that said, as we have a very fantastic panel, so I would request Dr. Amit Kumar Giri, who is the Assistant Professor in XISS, and also Vineet Lakda, who is again Assistant Professor here, to give us brief presentation on the findings that we have done in the district of Ramgarh on structure industry. So I will invite both of them to have a brief presentation on that. जोहार। हम लोगों ने इस स्टडी में कोशिश करने का कोशिश किए हैं कि जो स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं यूथ कैसे कैसे फेस करते हैं, और इस स्टडी को हम लोगों ने रामगढ़ ज़िले में पूरे 6 ब्लॉक में किया है। लगभग हम लोगों ने 18 गाँव में सर्वे किया और 10 गाँव में FGD किए। इसमें हम लोगों ने समाज के सभी युवाओं को सम्मिलित करने का कोशिश किया है, जिसमें कि टोटल 373 युवा हैं इस सर्वे में, और जिनमें अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन सैंपल साइज इज़ प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन, जिसमें जितने पॉपुलेशन है उसी के आधार पे हम लोगों ने भी सैंपल साइज लेने का कोशिश किया। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रक्चरल बैरियर्स एक युवाओं के सामने किस किस रूप में आती हैं। तो इस स्लाइड पे आप देख सकते हैं, ये बहुत तरीके से एक आती हैं। ये आर्थिक हो सकती हैं, फिनेंशियल हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, मार्केट्स हो सकते हैं, पेरेंटल एजुकेशन हो सकते हैं, कम्युनिटीज़ हो सकते हैं, रिलीजन हो सकते हैं। ये बहुत सारे प्रकार के हैं जो सारी ये जो बाधाएँ हैं एक युवाओं पे असर डालती है उसके कैपेबिलिटीज़ और एस्पिरेशंस को इम्प्रूव करने के लिए या उसको लोअर करने के लिए। ये जो मेथडोलॉजी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम लोगों ने बेसिकली क्यू अप्रोच यूज़ किया है। इसमें क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव बोथ अप्रोचेज यूज़ किया है, और जो डेटा है कलेक्ट किया है वो ट्रीफ के OI ने किया है। हम लोगों ने ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया और जो डेटा कलेक्ट किया है हम लोगों ने उनको यहीं एक्सरसाइजेस में ट्रेन किया, डिजिटली उन लोगों ने डेटा कलेक्ट किया और उन लोगों ने हमें भेजा, जिसके आधार पर ये सारी फाइंडिंग्स आई है। आप ये देख सकते हैं कि मैंने बताया कि जो सैंपल साइज है पॉपुलेशन प्रोपोर्शनेट टू पॉपुलेशन है, इसमें हम लोगों ने सभी को लिया, OBC मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, यहाँ तक कि हम लोगों ने PBTs को लिया। PBTs में स्पेशली हमने बिरहोर कम्युनिटी को टारगेट किया, और उसके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ भी हैं। इसमें हम लोगों ने 28 और जो एज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स है, युवा बेसिकली इंडिया में डिफाइंड होता है 15 to 29 ईयर्स ऑफ एज, पर हम लोग 1-2 ऐसे भी युवा मिले जो 29 ईयर्स ऑफ से ज़्यादा थे, पर वो अपने आप को युवा कहते थे, पर उनकी एज से हमें लगा कि वो 29 ईयर से ज़्यादा है।
सो एजुकेशन लेवल आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि गांव के युवा इलिटरेट होते हैं, शिक्षित नहीं होते, पर हम लोगों ने ये पाया कि ज़्यादातर युवा है 10+2 तक पढ़ते हैं, पर उसके बाद क्या करना है उनको प्रॉब्लम होने लगती है। और प्रॉब्लम इसलिए होती है कि वो तो ये नहीं जानते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। इसके अलावा जो भी अपने स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं वो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने लगती हैं। जो स्टेटस ऑफ यूथ्स है, ज़्यादातर युवा हमें अनएम्प्लॉयड मिले, और जो अनएम्प्लॉयड हैं ज़्यादातर हमें अनस्किल्ड या अनट्रेंड मिले। और रीजन्स ऑफ जो अनएम्प्लॉयमेंट है ज़्यादातर उन लोगों ने हमें ये बताया कि उनके पास कोई स्किल नहीं है, इसलिए वो उनको कोई काम पे नहीं रखता है, चाहे वो उनको काम नहीं मिलता है। और ज़्यादातर इनफेक्ट गांव के जो लोग हैं वो उन्होंने खास तरह से महिलाएं वो अपने गांव या अपने ब्लॉक के बाहर काम करना नहीं चाहती हैं। जो सारी जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हमने जो आपको दर्शाया वो उनके ऊपर हावी हो जाती है, जिसके कारण वो गांव के बाहर या ब्लॉक के बाहर काम करना नहीं चाहते हैं। और जैसे आपने देखा कि पुरुषों को पूरा फ्रीडम है, काम करने की आज़ादी है, पढ़ने की, लिखने की, लेकिन अभी भी गाँवों में ये जो स्ट्रक्चरल बैरियर्स के कारण महिलाओं को बहुत सारी बाधाएं हैं, वो अपने तरीके से पढ़ नहीं पाते, अपने मन का काम तक नहीं कर पाते हैं। और सबसे खास फाइंडिंग्स ये है कि जो अर्निंग एस्पिरेशंस होती है वो बेसिकली बहुत सारा चीज़ होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट डिटरमिन्स द अर्निंग्स इज और ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल उनके पास है ही नहीं, जिसके कारण क्या होती है उनकी अर्निंग एस्पिरेशंस भी क्वाइट कम है। ज़्यादातर युवा 5,000 से 10,000 के बीच कमाना चाहते हैं और ये सब काम करना चाहते हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोगों से हमने पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं, तो कहते हैं कि हमें बस लेबर का काम मिल जाए। बिजनेस एक्सपीरियंस बहुत ही कम है, हमें बस गिन के 13 लड़के मिले या युवतियाँ मिली जो काम करना चाहिए, बिजनेस करना चाहती हैं। शहरों में और सिंस वो लेबर के काम में, जिससे कि उनकी जो एस्पिरेशंस टू अर्न है वो माइग्रेशन के बाद भी काफ़ी कम हो जाते हैं। और जो डिसेबल्ड है ये सबसे नेग्लेक्टेड लोग है गाँव में, इनकी सारी लोग अनदेखी करते हैं और बेसिकली ये बहुत ही इनको क्या कहेंगे ये एक ऑप्रेस्ड टाइप से रहते हैं गाँव के साथ। इसके अगर न्यूज़ को अवगत करके आगे बढ़ सकते हैं। मेजर जो फाइंडिंग्स ये स्टडी से जो निकल के आ रही है, मैं सिर्फ मेजर जो फाइंडिंग्स उस पर हाईलाइट करना चाहूँगा। समीर सर ने बताया तो मेजर जो फाइंडिंग्स है इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्ट्रगल टू गेट लोन्स की। जब हम बात करते हैं मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म लोन्स, वो जो एक इंटरव्यूनर जब बैंक में जाता है या कहीं कोई भी अप्रोच करता है लोन के बाद, वहाँ सबको दिक्कत आती है। दूसरी दिक्कत ये है कि जो मिसमैच हो रही है स्किल्स के बीच, जो स्किल्स उनके पास है और जो स्किल्स एक्चुअली मार्केट में बनी हुई है, ये भी फाइंडिंग्स में निकल के आई है। डिस्क्रिमिनेशन भी है मेल्स और फीमेल्स में एजुकेशन की जब हम बात करते हैं। अर्ली मैरिज है, ये भी दिखाई दी है। लैक ऑफ पेरेंटल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। एट द एंड हम ये बोलना चाहेंगे कि जो स्ट्रेंथनिंग, जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलनी चाहिए उनको गवर्नमेंट से या डिफरेंट स्टेक होल्डर से, वहाँ पे उसमें बहुत भारी कमी दिखाई देती। तो मेजर रिकमेंडेशंस हम लोग 3 से 4 रिकमेंडेशंस मेजर करना चाहते हैं, क्योंकि ये केस स्टडी है और बहुत सारी बातें हम नहीं बोल पाएंगे इसमें, बट वट एवर रिकमेंडेशंस वी हैव गॉट डायरेक्टली कम्स आउट एमिनेट्स फ्रॉम द डेटा। सो मेजर रिकमेंडेशंस हो गई हमारे कैपेबिलिटी डेवलपमेंट पे, जहाँ पे इन्हांसमेंट की बात हम कर सकते हैं ऑफ कैपेबिलिटीज़ ऑफ रूरल यूथ्स, बोथ मेल फीमेल। रूरल यूथ को ट्रेनिंग दिलवाने की ज़रूरत है, स्किल रिलेटेड कोर्सेज वगैरह चला के या फिर ITIs वगैरह खोल के वोकेशनल ट्रेनिंग एक अच्छी चीज़ हो सकती है। और स्टिचिंग और टेलरिंग की बार नज़र आ रही थी, जो विलेजेस वगैरह में महिलाएं बात कर रही थी। इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट सिस्टम की भी ट्रेनिंग के जब हम अगर बात करते हैं तो गवर्नमेंट से उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट जो है एक मेजर स्टेक होल्डर की तरह रोल प्ले कर सकते हैं जब कॉलेजेस डेवलपमेंट की बात आती है, और अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ITIs और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। और फिर गाइडेंस एंड इंक्लूजन की अगर हम बात करें तो काउंसलिंग के सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमने ये भी पाया है कि पेरेंट्स को भी बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है और क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा कमी है बच्चों के बीच में, यूथ्स के बीच में, मेल्स एंड फीमेल्स।
तो वहाँ पे काउंसलिंग की ज़रूरत है, नॉट ओनली फॉर द चिल्ड्रेन बट पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की ज़रूरत है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। सो एक ये थोड़ा सा ग्लिम्स में बताना चाह रहा हूँ, हमने इसको बाइफरकेट किया था कि किस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं और किस तरह के नैरेटिव्स निकल के आए हैं। और ये जो एक फील्ड का मैं फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, जो FGD सेशंस हम लोग कर रहे थे फील्ड में। सो दिस आर द मेन थिंग्स एंड थैंक यू सो मच। हमारे दोनों प्रोफेसर्स को मैं धन्यवाद देता हूँ, विनीत और अमित को। उन्होंने प्रेजेंटेशन में वहाँ के केस स्टडी के बारे में बताया रामगढ़ का। अभी मैं तुरंत हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे एक दो सवाल करूँगा और उन सवालों का जवाब हम अपेक्षा करते हैं हमारे पैनलिस्ट लोग से और जानना चाहते हैं जो हमारे अनुभव को बढ़ाएगा। सबसे पहले हम श्री लोकेश मिश्र IAS से हम सवाल करेंगे। सर माइक सर। या सर, ST SCs PBTs जो हैं अपने एस्पिरेशंस को, ड्रीम्स को सर वो तो पाना तो चाहते हैं लेकिन वो उसको नहीं कर पाते हैं, तो उसकी डिफ़िकल्टी, उनकी समस्याओं के बारे थोड़ा सा आप चर्चा आपके अनुभव से बताएंगे कि और उसके सोल्यूशन क्या हो सकता है। सर आप वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से भी क्या सहयोग हो सकता है कि इनके एस्पिरेशंस को, ड्रीम्स को बढ़ाने के लिए। First of all, thank you TRIF and XISS for inviting me, for having me here. जो स्टडी XISS की तरफ से की गई और जो हम लोगों का अनुभव रहा है डिपार्टमेंट में, मोर और लेस यही है। जो हम लोगों ने महसूस किया है कि दो रीज़न्स हैं जिसके कारण ट्राइबल यूथ्स का जो पोटेंशियल है उसको हम लोग रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। फर्स्ट इज़ द लैक ऑफ एक्सपोजर। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि आवर डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर runs around 143 schools. These schools are different than the education department schools. So 143 schools में I have visited many. So when I interact with the high school or intermediate class students कि after passing out 12th examination what do you want to become, तो most of the students reply कि हमको ITI में एडमिशन लेना है, हमको पॉलीटेक्निक में एडमिशन लेना है, और या हम अपने घर में वापस चले जाएंगे बिकॉज आवर्स इज़ अ रेजिडेंशियल स्कूल, तो वहाँ से वापस अपने घर में चले जाएंगे। वी डोंट हैव एक्सपोजर फॉर द ट्राइबल यूथ्स। किसी ने वहाँ पर इंजीनियरिंग का या जो प्रेस्टीजियस एग्जामिनेशंस हैं, नीट का, JEE का, क्लैट का, इसके बारे में सुना ही नहीं है। तो ये एक बहुत ही मेजर इशू है जो हम लोगों ने रियलाइज़ किया है। इसके लिए हम लोग अभी हम लोगों की गवर्नमेंट ने भी हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप लॉन्च की है। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट, द मरांग गोंके ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम, जिसमें हम लोग यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, इनके कुछ सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ में सेलेक्टेड कोर्सेज़ के लिए स्कॉलरशिप देते हैं। व्हाट आई हैव डन कि एटलीस्ट हमारे जो स्कूल्स के बच्चे हैं उनको हम लोग DAV, DPS जो हमारे टॉप स्कूल्स हैं हमारे स्टेट के, वहाँ पर एक एक्सपोजर विज़िट कराने का हम लोगों ने प्रयास किया है, ताकि उनको कम से कम एक आइडिया तो लगे कि ये हो, उनका एम्बिशन थोड़ा आगे बढ़े। साथ ही साथ अभी हम लोगों ने, हमारे डिपार्टमेंट ने, वी हैव स्टार्टेड we are going to start a JEE NEET coaching for the 9th, 10th, 11th, 12th students. So we are doing that. Plus other important thing other than exposure, what I have experienced, कि there is a lack of skill set. The USP for our tribal youth is their honesty, their dedication. They are very hard-working fellows, and that is their USP. Because if you see in the cities like Bangalore, Delhi, we find most of the tribal youths working there, depending upon their skill set. But if we upgrade their skills, they are the most sought-after workforce. My co-panelist here, Mr. Meenakshi Kumar, must be telling
they run a they run the Preja, that is the Pan IIT Reach for Jharkhand, and they run around 28 Gurukuls and many skill centers here in collaboration with our department. So after acquiring the requisite skill sets, their demand is very much high in the big cities. So that is also very important, that we don't have the skill set. And third, most of our tribal youth, or let's say 26% of the tribal population, is engaged in agriculture and allied activities. So we can't enforce migration or stop migration. It's a natural process. But most of the tribal youths stay in the state. So for them, the agriculture and allied activity is the primary job. For that, we, as the part of state government, we are planning for effective implementation of FRA Act. You must have heard the Forest Rights Act. It is a very empowering act for the tribal, those who are living in the forest or in those areas for many, many years. So if we give them the title in there, we do give them the title, but if we enforce their FRA rights, then let's say you are having mining in most of the districts, but if it is a FRA title or a community title area, then the mining lease will be given by that community instead of the deputy commissioner. So that is a very empowering act. But I today acknowledge that FRA is not in our priority as it should be. But again, if we empower them in their native place, in their locality, then not only agriculture, the minor forest produce, and every related activity they will be doing, and they will be earning their income, they will be increasing their livelihood options. And lastly, I want to add that most important part for the tribal youths to break their structural barrier is to get the education and to get the skill set. That's the important thing, and we are focusing on that only. Yeah. Thank you, sir. Thank you. One more question I have just related to it, sir. This is demand side of explanations you had given. Some skill sets, lack of exposure, lack of education. And also you mentioned FRA, that is part of the supply side from your side. One more question just added to that, and that schemes and programs run by the government, many times the experience they are not included in that. So how to make programs and schemes more inclusive? So ये अनुभव बहुतों का है, जो लोग हैं कभी कभी लगता है उनको कि हम लोग उसका भाग नहीं है, तो ओनरशिप नहीं रहता है सर. तो आपका क्या कहना है उस पर? See, Department of Welfare in any state, or particularly in a tribal state, it runs many schemes. Like we in the state of Jharkhand, we run schools, we run hospitals, we run skill centers, we run hostels, we also give loans, also give educational loans, we also give livelihood options. So we run many schemes that is inclusive of not only tribal but other marginalized communities. But yeah, one important thing that I want to mention is that for tribal youths to become self-dependent or independent, it is important to start their own enterprise. But again, the XISS study is rightly saying that they don't get loans or credits easily, because there are reasons for that. One of the primary reason is that we have tenancy laws like Santhal Pargana Tenancy and Chota Nagpur Tenancy Acts, which kinds of stops or prohibits them to keep their land as mortgage in the banks. So they don't get easy loans as some of the normal people do. Second thing, what we have started that our department is providing credit, not only for education, not only for livelihood, for XYZ, anything. We not only state government but central government. There is I want to say there are 3 corporations working in state and center in cooperation, coordination, that provides loans
for the tribal youths to start their own business. And our state government honorable CM's a very flagship program, the CM EGP, that is Chief Minister Employment Guarantee Program. That is a very hit and very demanded scheme among the tribal youths, where we provide 40% capital subsidy for the loans that we are giving. So slowly we are reaching to that potential. We are going to break that barrier that stops the tribal youth to realize their potential. Yeah. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Now I go to second person, Dr. D.K. Singh. And sir is Sri Lokesh Mishra, sir, thank you so much for your valuable time and insightful perspective on the session. Unfortunately, sir won't be able to stay with us longer for the session. Hence, we would like to present a token of appreciation for your time and perspective, sir. Thank you so much. Hello. Sorry, I could not have time to listen to the prestigious co-panelists because I have to attend some important assignment. But again, thank you TRIF and XISS, and I'd be grateful if XISS shares the study done, and that will certainly help our department to formulate better policies and programs. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much for your input, sir. Thank you. Okay, so now Dr. D.K. Singh, sir, you are an educationist and you are Vice Chancellor and you are also techno-savvy, you are an engineer, and therefore some questions उसी से related है कि how to motivate tech companies to start industries where they can generate employment for the rural youth. कैसे मोटिवेट करेंगे उनको, चूँकि रूरल एरिया में ना भी जाना चाहें कंपनीज, लेकिन हमारे यूथ आपने सुना अभी रिपोर्ट में कि अपने एरिया में जॉब चाहते हैं, तो कैसे उनको मोटिवेट किया जा सकता है सर? Thank you very much. Thanks to XISS and the organizing team. आपका क्वेश्चन बहुत ही पर्टिनेंट है। क्या है कि हम लोग अभी 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं एंड इस 21वीं शताब्दी में द गैप बिटवीन अर्बन एंड द रूरल इट शुड बी मिनिमाइज्ड। और आपको जान की खुशी होगी कि सबसे पहले इस गैप को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मिनिमाइज किया। आईटी के सेक्टर में आप देखेंगे ये कोरोना हमारे लिए एक वरदान भी साबित हुआ। इस कोरोना काल में हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे गांव तक पहुंच गया। आप कोचिंग में देखेंगे एक फिजिक्स वाला आया, 5,000 रुपये में अब उनको जेई का कोचिंग मिल रहा है और मेडिकल का मिल रहा है। दिस इज द डिजिटल गैप समझे ना विच वी हैव completed, that has been bridged because of this IT infrastructure of the country. हमारी जो को-फाउंडर हैं वेदांतु वाले, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, IT के हैं, वो लोगों ने कहा कि सर कोरोना में हमारा जो टर्नओवर था करीब 300 to 600 करोड़ हम लोगों ने अर्न किया। जो एजुकेशन कन्फाइंड था अच्छे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वो गांव तक पहुंच गया। आप इसको बिलीव करेंगे एज ए एकेडमिशियन कि अब ट्रेडिशनल मोड ऑफ टीचिंग 21वीं शताब्दी में ख़त्म होने जा रहा है, सफिशिएंट नहीं है। गॉन आर द डेज ऑफ चॉक एंड टॉक कल्चर। आपका आज का 21वीं शताब्दी का जो यूथ है वो बिलीव करता है कट कॉपी एंड पेस्ट। दे वांट सम एक्साइटमेंट, दे वांट सम गुड कंटेंट अवेलेबल देयर। उसका रोना क्या रहता है, आप किसी भी अच्छे स्कूल्स में जाएं तो मालूम हुआ कि एक सब्जेक्ट का टीचर अच्छा है,
दूसरे सब्जेक्ट का अच्छा नहीं है। बट इस डिजिटल टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को, स्पेशली हमारे कंट्री में आप देखेंगे गांव-गांव तक बच्चों का वो जो एक गैप था वो तो दूर हो गया। रही बात एजुकेशन को, तो एजुकेशन को सबसे बड़ा बेनिफिट मिला है पोस्ट कोरोना में। इसके पहले ही हमारा कंट्री ने स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये इसको बहुत आसानी से इस गैप को दूर किया। सेकेंड प्रॉब्लम है कि जैसा मैं देख रहा था आपका डेटा, आप जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, दो तरह के यूथ है आपके पास, एक है स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, एक है अनएम्प्लॉयड यूथ। उसको कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए, और आपने कहा कि कैसे अट्रैक्ट किया जाए। झारखंड का स्कूलिंग सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है। आप बहुत कम गार्जियन को देखेंगे कि स्कूल्स एजुकेशन के लिए किसी दूसरे स्टेट में भेजते होंगे, बहुत कम, हमको लगता है 1-2% से ज़्यादा नहीं होगा। प्रॉब्लम कहाँ है? टेक्निकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन। तो उसको हम दूर करने के लिए अभी डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, तो आप बहुत सारे जो टेक सेवी कंपनी हैं, जैसे हमारा हायर एजुकेशन ने स्टार्ट किया है TCS IN कोर्सेज का, ताकि कॉमन मैन तक स्कूल के बच्चों तक पहुंच सके। सेकेंड है कि आप टेक कंपनी को आप रूरल जो आपका प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आप उसके लैंड दें। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत होगा? तो हमारा बीइंग ए टीचर ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेज 2 और 3 पैरामीटर्स ही हम लोग मानते हैं। एक है कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या है? टेलीकॉम नेटवर्क्स, ताकि हाई स्पीड का हमारा बैंडविड्थ उसे मिल सके। जब तक हाई स्पीड का बैंडविड्थ नहीं देंगे तब तक पूरे आउटरीच और कोलैबोरेशन को मजबूत नहीं कर सकते हैं। सेकेंड है आपका ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को आप मजबूत करें। थर्ड है एनर्जी एक्सेसिंग को आप बढ़ावें। इंफ्रास्ट्रक्चर को जो ही आप बढ़ावेंगे, आप गांव के लेवल पर देयर मस्ट बी ए गुड कोलैबोरेशन बिटवीन इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एजेंसी एंड एकेडमिया, ताकि अच्छे अच्छे कोर्सेज को हम वहाँ आप टेक्नोलॉजी पार्क आप खोलें, साइंस पार्क खोलें गवर्नमेंट के सपोर्ट से, ताकि बच्चा आसानी से उसको एक्सेस कर सके, एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे। उसके लिए एक लैंड बैंक बनाने की ज़रूरत है प्रत्येक आपका रूरल एरियाज़ में, जहाँ पर आप टेक्नोलॉजी पार्क देते हैं, आप इंडस्ट्री पार्क देते हैं। इंडस्ट्री को आप बतावें कि आपके लिए ये सुविधा है। आप रूरल एरियाज़ में जाते हैं, जस्ट लाइक चाइना में आप देखेंगे कि रूरल एरियाज़ के लिए टैक्स कट है, कम टैक्स वहाँ पर लगता है। तो ये आपको थोड़ा प्रमोट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें लगता है कि गवर्नमेंट एजेंसी को CSR की इतनी फंड है कि आप CSR में ही आप चाहेंगे तो ये सारे पार्क को खोल सकते हैं। उड़ीसा का एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, SDI का ना, स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का आप देखेंगे एक ह्यूज पार्क उन लोगों ने भुवनेश्वर में खोला, जहां दूर दराज के बच्चे सब आते हैं, हॉस्टल के फैसिलिटी रखा गया। उसी तरह से हम लोग को अट्रैक्ट करना पड़ेगा अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज़ को, और जो हमारे जो टेक्नोलॉजी सेवी कंपनी है उसको गांव के लिए कुछ स्पेशल स्कीम्स देकर करना पड़ेगा। एक तो CSR के द्वारा हुआ, गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है जो ऑनरेबल कमिश्नर्स बता रहे थे उसके थ्रू, प्रेजा के मीनाक्षी साहब हैं ही, बहुत सारे ITI और हम भी उसके एक मेंबर हैं, बहुत सारे इनको पॉलिटेक्निक्स हम लोग ने दिया है। और हमारी जो मिनिस्ट्री है डिपार्टमेंट ऑफ हायर टेक्निकल एजुकेशन, हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारी जो गवर्नमेंट है, उन लोग अब हम लोग स्पेसिफिक सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। और स्पेसिफिक सेक्टर्स में मैं आपको एग्जांपल दे दूं, 1 साल के अंदर में BIT सिंदरी में हम लोग वहाँ टेक्नोलॉजी पार्क देने जा रहे हैं, साइंस पार्क देने जा रहे हैं, ताकि प्रत्येक डोमेन्स में स्टूडेंट्स आकर केवल BIT सिंदरी के नहीं पूरे स्टेट का आकर वहाँ ट्रेनिंग ले सके। सो वी आर प्रोमोटिंग अप्रेंटिसशिप एंड इंटर्नशिप, ताकि वो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े और एंटरप्रेन्योर कल्चर को मौका मिले। थैंक यू वेरी मच। Okay. Thank you, sir. You have given very comprehensive answer of the area that you were asked. आपको धन्यवाद देते हैं सर। 1-2 सवाल था, आपने सबों को इंक्लूड करके सबों का जवाब दे दिया है सर। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वी गो टू मिस्टर मीनाक्षी कुमार।
सर अभी मार्केट का ज़माना है और मार्केट जैसा जाता है वैसा हम सबों को भी ढालना पड़ता है। दिस इज़ द इकोनॉमी ऑफ मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, और उसके लिए स्किल सेट की भी ज़रूरत होती है वैसा ही, ताकि हम उसको उस पेस के अनुसार आगे बढ़ सकें। लेकिन यूथ लोगों में वो स्किल की कभी कभी कमी होगी, जिसके चलते वो मार्केट के रफ्तार से नहीं जा पाते हैं। दैट गैप वी सी सर। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट कि हमारी जो एजेंसी है सर, स्किलिंग एजेंसी, वो लोग किस तरीके से काम करें कि यूथ को उस स्किल से मैच करा सकें जो बाज़ार में ज़रूरत है, मार्केट में ज़रूरत है सर। Thank you very much for this opportunity, and I'm extremely sorry I'm not very fluent in Hindi. So if I can do it in English, I request your permission to do it in English. Okay sir, yeah. Continue. So it's very, see what Pan IIT Foundation or Pan IIT Alumni Reach for Jharkhand Foundation does in Jharkhand is we actually work reverse. We don't go from courses to jobs. We go from jobs to courses. So what has happened is we have done a couple of initiatives. First, we have a very strong business development team which actually maps the number of jobs. Then, based on the jobs, we design the courses through the State Council for Vocational Education, and of course now we have our own skill university, which has been recently, by act of assembly we have formed. So we have complete autonomy in terms of selecting the courses which were demand-led, industry-ready, and the salaries are prefixed on a premium over market. So automatically, whatever skilling we do, which we normally do to bottom of the pyramid people, we are able to deliver jobs through quality training in our institutions, customized programs which are industry-led and demand-led, and the salaries are also premium over market. Now, if it comes to bottom of the pyramid, we address affordability of a candidate through a skill loan. We don't generally ask the candidate to pay upfront or subsidize, but for the candidate to have a skin in the game, we ask them to generally come through a skill loan, which includes everybody. So there is no question of anybody, the affordability factor is completely removed. So anybody can take a skill loan and come to our institutions. It's basically for bottom of the pyramid. It basically predicates jobs. So the skilling part is not based on what we want to give. Skilling is based on what the market requires, and then and it is accordingly imparted on the candidates, so that automatically the assurance of job is 100%, and they automatically go to jobs. Yeah. Thank you. Thank you. Sir has touched a very important point, that skill required today must be according to the market. That means the market's demand. ये बहुत बहुत ज़रूरी है, जिस आपने सभी को सुना ऐसा ही है। इसलिए जॉब मार्केट में जो है उसी के अनुसार ट्रेनिंग देते हैं, उसी के अनुसार एजुकेशन देते हैं। सर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड इनसाइट। अगला हम पैनलिस्ट के पास जाते हैं, मनीष कुमार। यस मनीष, आपके लिए एक सवाल है मनीष। ये जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट हमको देना है, आप एंटरप्रेनर हैं, आप एंटरप्रेनर हैं सर, तो ये एंटरप्रेनर के लिए हम अपने युवा को कैसे ये एंटरप्रेनर बना सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे ले सकते हैं, और हम रूरल यूथ की बात कर रहे हैं। दूसरा उसी से थोड़ा सा जोड़ करके संक्षेप में आप अगर हम सबों को बता देंगे तो ये इसके लिए सपोर्ट स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, गवर्नमेंट की तरफ से सर, इंडस्ट्री की तरफ से, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, कोई भी जो डिफरेंट एजेंसी है सर, थोड़ा ब्रीफली आप अगर इसको बता देंगे तो हमारे जो हैं हम सबों को मदद होगी समझने में। श्योर। पहले बहुत धन्यवाद इस मौका के लिए। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरी एक डेयरी और फूड प्रोसेसिंग की फैक्ट्री है और मांझी में। और जो सवाल आपने पूछा कि कैसे मोटिवेट करें, उनको प्रोत्साहित कैसे करें, तो आई थिंक सबसे पहले उनको ये भरोसा दिलाना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ झारखंड में पॉसिबल है। जो हम लोग जैसे हमारे कंपनी में बहुत ट्राइबल यूथ, मेल फीमेल सब काम करते हैं, वो लोग कभी ये सोचे ही नहीं कि गांव में भी एक छोटा सा बिजनेस को खड़ा किया जा सकता है। उनको हमेशा ये लगा कि कुछ पढ़ाई कर लेते हैं, कोई स्किल सेट कर लेते हैं और फिर बाहर जाके दिल्ली बेंगलोर में जाकर के जॉब करेंगे। हुनर उनमें है, लेकिन अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए उनको एक्सपोजर नहीं है, कि कभी उनको पता भी नहीं है कि झारखंड में
कई सारे छोटे उद्योग काम कर रहे हैं। तो पहला, सारी चीज़ों का मैं एक साथ लिंक करूंगा कि गवर्नमेंट का सबसे पहला रोल तो यही है कि उनको ये बताना कि ऐसे उद्योग हैं और आप खड़ा कर सकते हैं। जैसे मुझे उद्योग अपना खड़ा करने का प्रोत्साहन कहाँ से मिला? मेरी पोस्टिंग जब मैं टाटा कंपनी में था तो मेरी पहली पोस्टिंग गुजरात थी। जब मैं गुजरात में देखा कि सभी लोग नौकरी के बदल बनस्पत अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मेरा ड्रीम हमेशा वही था, इंजीनियर बनना, जॉब करना, बड़ी कंपनी में कॉर्पोरेट करना। तो मैंने ये सोचा कि मैं अपने शहर में क्यों नहीं कर सकता ये चीज़। सेम चीज़ यहाँ के रूरल यूथ, जैसे अभी लोकेश सर यहाँ पर थे, वो बोले कि नहीं मैं आईटी कोचिंग, जेई कोचिंग, है ना, नीट कोचिंग वाले के लिए मैं या बड़े स्कूल्स में ले जाना चाहता हूँ। वो आप कीजिए, पर उसमें से भी 100 में से 1 या 2 सिलेक्शन होता है एवरेज। आप बाकी 99 का क्या करेंगे? आप उनको छोटे उद्योग के पास आइए, आप हमारे उद्योग को उनको दिखाइए। क्लास 9-10 के बच्चे को अभी से एस्पिरेशन दिखाइए कि क्या तुम थोड़ा 12th क्लास के बाद तुम क्यों बड़े कंपटीशन या कॉलेज के रेस में हो, तुम अपना उद्योग क्यों नहीं कर सकते हो? आप हमारे पास लेके आइए, अभिषेक के पास लेके आइए, जिन्होंने छोटा छोटा उद्योग यहाँ पर बनाया है। और सर एक चीज आप बहुत स्पष्टली हम सबको बताएं, अगर ये कि माइंडसेट को चेंज करना होगा, बदलना होगा, सो पहला ये वी कैन डू इट, इट इज पॉसिबल। और कोई आप ऐसा पॉइंट ला सकते हैं, बता सकते हैं हमारे युवा को सर कि इसके अलावा, माइंडसेट के अलावा? हाँ, अब देखिए गवर्नमेंट के जो स्कीम्स जैसे बताए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को पहला बात क्या है कि एक इकोसिस्टम क्रिएट करना, एक माहौल क्रिएट करना बहुत जरूरी है। कि आप जैसे एग्जांपल कल होकर के किसी चीज़ की फूड प्रोसेसिंग, जैसे मेरी डेयरी की फूड प्रोसेसिंग है, कल होकर के आप सब्जियों का कुछ आप एग्जांपल प्रोसेसिंग करना चाहते हैं। आज टमाटर है, आज टोमेटो प्योरी का कोई व्यवसाय कर लिया होता तो कहाँ से कहाँ वो पहुँच गया होता। एक छोटी सी बात कह रहा हूँ। और आपको उसके लिए क्या चाहिए कि आपको उसके लिए प्रोसेसिंग क्या है, पैकेजिंग के लिए क्या मटेरियल है, क्या गवर्नमेंट की स्कीम है, पीएमएफएमई के लोग यहाँ बैठे हैं जिसमें 35% सब्सिडी है। तो उस युवा के पास जाकर के सरकार को बताना पड़ेगा कि आप करो, आपको ये ट्रेनिंग चाहिए, आपको यहाँ से एक्सपोजर चाहिए, आपको यहाँ से पैकेजिंग चाहिए, आपको यहाँ से सर्टिफिकेशन चाहिए। और कुछ लोग ये हैं जो कि आपको मार्केट दिलाएंगे, और उनको रिस्क लेने के लिए उनको मौका दीजिए, उनको हतोत्साहित ना करें, उनको बोलिए कि तुम 2 साल करो। तो ये सारी बातें का एक उनको माहौल देने से मुझे लगता है कि 100 में से 10 सक्सेसफुल जरूर होंगे, और वही 10 को देख करके गांव के यूथ लोग, बाकी लोग पार्टिसिपेट। थैंक यू मनीष सर, थैंक यू फॉर इनसाइट। आपने बहुत अच्छा पॉइंट लाया है। हमको अपना माइंडसेट बदलना होगा और सरकार की ओर से इकोसिस्टम भी बदलना होगा, ये तो बहुत ही ज़रूरी है, हम उसको समझते हैं। हम अभी जाते हैं हमारे राजकुमार पोदर सर। सर आपके लिए हम उसी लाइन का है, आप भी एंटरप्रेन्योर हैं सर, और एंटरप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आते हैं सर, और ये इंडस्ट्री के बारे में आपका नॉलेज है सर। उसी से रिलेटेड वन क्वेश्चन वी हैव फॉर यू इज़ कि हम रूरल यूथ लोग को तो जो सेटअप करना होगा एंटरप्रेन्योरशिप काम करने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, तो उसमें हम एक सेगमेंट को लेकर के आपसे जानना चाहते हैं सर कि फीमेल यूथ के लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्या डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं सर उनके लिए? क्योंकि हम जहाँ स्टडी कर रहे थे उसमें ये थोड़ा सा हम लोग फेस किए कि फीमेल सेगमेंट, फीमेल यूथ के लिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन था, तो बैरियर था, वो स्ट्रक्चर बैरियर हमने पाया। तो आपसे सुनना चाहते हैं थोड़ा सा उस सेगमेंट को लेकर आपका क्या लेना है सर? थैंक यू। सबसे पहले मैं अपने बारे में अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम राजकुमार पोद्दार है और मैं एमडी पोद्दार ग्रुप हूं। इसके अलावा एमएसएमई का प्रेसिडेंट हूं, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, और बहुत सारी सोशल संस्थाओं को भी लीड करता हूं। मैं भी एक छोटे से गांव से आता हूं, बहुत छोटे से गांव, नारायणपुर बोल के एक छोटा सा गांव है जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो अभी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने इस टॉपिक पे बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, और जहाँ तक बात है कि इंडस्ट्री सेटअप के लिए जो रूरल एरियाज़ में, विलेजेस में, और तो ये बहुत सारा स्कोप वहाँ पे है। और हमने भी एक छोटे से नारायणपुर से स्टार्ट किया था, एक छोटा सा सेटअप। पहले मैंने राइस मिल लगाया था वहाँ पे, और फिर उसका बड़ा रूप मैंने थोड़ा सा और आगे बढ़े हम लोग, तो ये डिस्ट्रिक्ट जो टाउन है जामताड़ा, वहाँ पे हमने फिर बड़े रूप में एक राइस मिल को लगाया। फिर और हम लोगों ने आगे बढ़ा तो फिर मैंने रांची में सेटअप किया, और आज मेरा व्यापार जो है पूरे हिंदुस्तान में मतलब बहुत सक्सेस के साथ चल रहा है। अभी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप महिला हैं या युवा हैं, वो अभी गांव में बहुत सारा स्कोप है, जो थोड़ा सा हिम्मत करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी साहस करने की ज़रूरत है, तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे इंडस्ट्री हैं, उसमें बहुत
कम पैसा लगता है, बट आप अगर स्टार्ट करेंगे तो आप डेफिनेटली सक्सेस करेंगे। सर जी थोड़ा सा बात डालें सर, ये फीमेल ग्रुप सर हम लोग को स्टडी में बोलते हैं कि हमारे पास में थोड़ा सा फैमिली में रिस्ट्रिक्शन होता है कि जैसे मेल ग्रुप है वैसा हम लोग को थोड़ा सा खोलने जाने की स्वतंत्रता नहीं होती है, तो उस माने में आपका क्या कहना है? सर अगर वो लोग एंटरप्रेनर बनना चाहते हैं। सर देखिए, अभी तो ये चीज़ आप जो बोल रहे हैं, अब हम अभी जिस 21वीं शताब्दी में, ऐसा मुझे अब नहीं लगता है कि बहुत सारी इस तरह की समस्या है। अब वोमेंस भी बहुत आगे आ रही है, हर फील्ड में आप देखिए कौन सा फील्ड ऐसा बचा है जहाँ पे महिलाएं नहीं हैं। और अभी बहुत सारी इंडस्ट्री है जो इंडिपेंडेंट महिलाएं चला रही हैं। हमारे यहाँ पे महिलोंग में, टाटी सिल्वे में, मेरी नज़र में बहुत सारी ऐसी, एक फ्लाइयर्स की फैक्ट्री है जो सिर्फ एक महिला है वो रन करती है। तो आप थोड़ी सी हिम्मत करने की ज़रूरत है। आप बहुत सारा ऐसा फील्ड है, आप फ्लाइयर्स का बना लो, आप जंगल में जो पत्ते आते हैं उनकी फैक्ट्री डाल दो, आप फूड प्रोसेसिंग में चले जाओ, टोमेटो हैं, पीस हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप छोटे रूप में स्टार्ट करिए, छोटे बिजनेस, छोटे कम पूंजी से आप स्टार्ट कीजिए, आप ग्रो कर जाएगा। हम लोगों ने प्रैक्टिकल इस चीज़ को देखा है। और मैं बताऊं, मेरी मोटिवेशन से कम 5-6 लोग ऐसे हैं जो आज बहुत सक्सेस हैं, बहुत सफलता उन्होंने प्राप्त की है। बस थोड़ी सी, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक कोट पढ़ा था धीरू भाई अंबानी का कि आप किसी के यहाँ जॉब करके ना आप उनके सपनों को साकार कर रहे हैं। तो मैं अभी जो यूथ से, महिलाओं से, या जो भी, मैं उनको बोलूँगा कि भाई आप, आजकल क्या है ना, मैं देखता हूँ जो ट्रेंड चला हुआ है, लोग जॉब की तरफ बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, जिनको भी पढ़ लिख के नहीं जॉब करना है। भाई मेरे जॉब करना है ठीक है, लेकिन आप अपना बिजनेस करके देखो, आपको उसमें जो मज़ा आएगा। और अपना अगर आपका खुद का बिजनेस है तो स्काई इज़ द लिमिट। और जॉब में तो आपको एक लिमिटेड सैलरी मिलती है, उसी में आपको पूरी अपनी ज़िंदगी चलानी है। आपका कितना ही ग्रोथ हो जाएगा आप ये समझ सकते हैं। थैंक यू राजकुमार सर, थैंक यू कि हम आपने कहा कि हम सबों को कि सिर्फ जॉब में ही लाइवलीहुड नहीं ठहरा हुआ है। हम सबों के लिए ये भी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपना बिजनेस भी चला सकते हैं, खोल सकते हैं। और आपने हमारे फीमेल यूथ को भी ये दिया कि ये संभव है, जो कि बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जो किए हैं, इसलिए उनसे उदाहरण लेकर के भी हम कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे पास अभी लास्ट स्पीकर हैं, लास्ट पैनलिस्ट हैं, मिस्टर अभिषेक उरांव। वेलकम सर। मैं हट करके एक क्वेश्चन पूछता हूँ सर। आप भी एंटरप्रेन्योर हैं सर, और आप 2 चीज़ों में आप काम कर रहे हैं। एक है कि फूड प्रोसेसिंग में, और दूसरा है आप टूरिज़्म में। सर मैं हट करके एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपको कि व्हाट अपॉर्चुनिटी डू यू सी टू डेवलप टूरिज़्म इंडस्ट्री इन झारखंड सर? क्योंकि हम देखते हैं अभी बहुत थोड़ा पिकनिक स्पॉट में जाते हैं, यहाँ हुआ तो मुझे भी वैसे ही लगता है कि कहीं अपॉर्चुनिटी है नहीं है, लेकिन चूंकि आप उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप बिलोंग करते हैं, आप ज़्यादा इंसाइट्स दे सकते हैं सर। सबसे पहले थैंक यू एवरीवन। exercises, it's great to have this stage and share the dais with such eminent people. My name is Abhishek Oraon, मैं basically झारखंड से ही हूँ। And sir, मैं basically पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। मैंने MBA पुणे से किया, उसके बाद I did my flying, और मैं स्टेशन था दिल्ली में। दिल्ली से जब मैं वापस आया यहाँ ड्यूरिंग कोविड, यहाँ पर मेरे फादर ने एक छोटी सी एग्रो यूनिट खोली थी जहाँ पर हम लोग रोज़ का प्लांटेशन करते थे। और कोविड के समय मैं यहाँ रहा तो फिर मन यहाँ लग गया, एंड आई वाज लाइक दैट वाज द मोमेंट कि अब अपना ही कुछ करना है। आई लेफ्ट माय जॉब, और जो मैंने एक्सपीरियंस लिया था बाहर, बेसिकली मैंने यूरोप में देखा था कि किस तरीके से वहाँ पे विनयार्ड्स होते हैं, किस तरीके से वहाँ फार्म्स होते हैं जहाँ लोग घूमने आते हैं। बेसिकली आप स्ट्रॉबेरी पिक कर रहे हैं, आप अपना वाइन बना रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं अपने गांव में, अपने घर में, अपने देश में ऐसा कुछ करके देखा जाए। सो इन दैट एग्रो यूनिट विद द रोज़ प्लांटेशन हम लोगों ने एग्रो टूरिज़्म की शुरुआत की। आइडिया वॉज कि लोग वापस आएँ, अपने गांव को देखें, गांव में लाइफस्टाइल कैसा है। इनफैक्ट जो हमारा ट्राइबल लाइफस्टाइल है, आई कम फ्रॉम अ ट्राइबल कम्युनिटी, सो हमारा जो लाइफस्टाइल है, अ लॉट ऑफ पीपल आर अनअवेयर अबाउट इट, कि ये लोग कैसे रहते हैं। मतलब यू विल बी सरप्राइज, मेरे से लोगों ने ये भी पूछा था कि यार पत्ते वत्ते पहनते हो क्या आप लोग, बट द पीपल आर एक्चुअली नॉट अवेयर। तो अगर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि टू शो वेयर वी कम फ्रॉम, और मैंने यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देखी कि आई कैन क्रिएट अ प्लेस जहाँ पर लोग आ करके झारखंड के कल्चर को समझ सकें। आई मीन अगर हम लोग खाने की बात करें बाहर, तो लोगों को ये भी अवेयरनेस नहीं है कि व्हाट इज़ झारखंडी फूड। पीपल कैन एक्चुअली आस्क लिट्टी चोखा मिलता है क्या वहाँ। सो वी हैव डिफरेंट फूड फ्रॉम डिफरेंट ट्राइब्स, सो आई क्रिएटेड अ प्लेस। और ये मैंने उसके बाद देखा कि हैड अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग इन। माई प्लेस इज़ लोकेटेड बिफोर खूंटी, एंड इट्स इन द मिडल ऑफ नोवेयर।
but I have guests coming in from all over Jharkhand and even abroad. In fact, हम लोगों ने एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया था सर, सितंबर अगर ये बच्चों को स्पेसिफिकली झारखंड के बारे में बताना चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटी, कैसे जा सकते हैं कि यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री थोड़ा सा बढ़ सकता है? टूरिज्म को लेकर के बात ऐसा है कि दिस प्लेस इज फिल्ड विद पोटेंशियल. हमें थोड़ी सी पॉलिसीज़ को पुश करने की ज़रूरत है जो लोकल प्लेयर्स को लेकर के, लोकल एंटरप्रेन्योर्स को लेकर कंड्यूसिव रहें. The geography and the relief is such कि it provides excellent opportunity for trekking, camping, nature trails. Plus हमारा जो cuisine है, हमारा जो culture है, उस पर अगर focus करें, if we take example of North East, वहाँ जो खाना पान है, that is very different. हमारे यहाँ भी काफ़ी similar है, we can do that. हमारे यहाँ जो fermented alcohol बनता था. So interestingly, छत्तीसगढ़ and North East has taken up wine tourism. So हम लोग अगर उस direction में भी कोशिश करें तो we can move forward. So it is again up to us कि हम लोग अपने आप को कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, कितना इनोवेशन ला सकते हैं. थैंक यू सर, थैंक यू. ये बहुत अच्छा इंसाइट है. मैंने भी आसाम में देखा था वो अपना कल्चर और फूड को कैसे प्रमोट करते हैं. साथ ही साथ जो भी जाते हैं वो देखते हैं, फिर खाते भी हैं. तो एक जो वहाँ पर टूरिज़्म इंडस्ट्री है उसकी वृद्धि भी होती है, बढ़ोतरी भी होती है. तो इस बहुत अच्छा इंसाइट है हम सबों के लिए, युवा के लिए भी, हम सबों के लिए. थैंक यू सर. Thank all the panelists, and after listening to you, I have gathered some information, some points, जिसको मैं summarize करना चाहता हूँ, आप सबों के साथ साझा करना चाहता हूँ. और ये सभी जब बातें कर हमारे पैनलिस्ट लोग ने कुछ तरीके से ले ही आए हैं सभी चीज़ को, जिसको मैं कुछ बिंदुओं पर लाकर 5-6 बिंदु है उसको लाकर समाहित करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ. सबसे पहले पैनलिस्ट लोग जो डिस्कस किए उसमें से एक बिंदु मैं लाया हूँ, वो है असेट क्रिएशन. इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे, एक पैनलिस्ट ने इसको जोर देकर कहा था, लेकिन मैं वहीं तक नहीं रहना चाहता कि वो सिर्फ एसेट क्रिएशन ना हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर लें तो उतना तक हो जाएगा. क्योंकि हम अभी ये भी बात करते हैं कि एसेट निर्माण क्रिएट कर भी लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो भी गया, तो उसमें एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं है, एक्सेस है कि नहीं है. अगर एक्सेस नहीं होगा तब तो कोई मायने नहीं रखता है. इसलिए वो एक्सेसिबिलिटी भी जरूर है. इसीलिए बेसिक फैसिलिटीज लाइक इरिगेशन फैसिलिटी, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, ये सब की बहुत ज़रूरत है. हमारे पैनलिस्ट लोग ने इन बातों को लाया है. और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना, इंफ्रास्ट्रक्चर का वृद्धि करना और उसको मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है, और जॉब क्रिएशन में, लाइवलीहुड क्रिएशन में. दूसरी बात, मार्केट का मैं इस बात को लाना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट भी है, सर्विस भी है, लेकिन अगर हमारे लिए मार्केट नहीं है तब तो हम उसको कहीं भी नहीं बेच सकते, कहीं भी नहीं ले सकते हैं, उसे हम पैसा नहीं कमा सकते हैं. हमारे युवा वर्ग जब हम इंटरव्यू ले रहे थे, आज FGD कर रहे थे, KI कर रहे थे, तो इन बातों को उन्होंने लाया भी कि हमारे पास मार्केट नहीं है. हाँ, हम सिलाई भी कर लेते हैं, कपड़ा भी है मेरे पास. कुछ मैं फीमेल यूथ ने कहा हमारे पास बाजार नहीं, इस्टेब्लिश मार्केट नहीं, तो हम कहाँ ले जाएंगे. तो ये बात उन्होंने कहा था, और उसी से है मार्केट का. यहाँ भी हमने डिस्कस किया कि मार्केट इंपॉर्टेंट है. उसमें एक बात और उभर करके आया था कि मार्केट में जो स्किल की ज़रूरत है उसी स्किल को हमारे युवा को सीखना है. अगर उसमें मिसमैच हो जाएगा तब तो बेकार हो जाएगा. इसीलिए मार्केट जहाँ जो ज़रूरत है उसी स्किल को हम एजुकेशन सेक्टर में देते हैं, कॉलेज में, स्कूल में, तब वो मैच करेगा, तब वो एजुकेशन रेलेवेंट होगा. ये पॉइंट भी उभर करके आया बड़े स्ट्रांगली. Third one I would like to bring in my summary is the institutional support for the sustainability. ये बहुत ज़रूरी है. अगर हमारे पास इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है, जैसे TRIF है जो गांव लेवल में काम कर रहा है, वैसा ही जो भी संस्थाएं हैं, संस्था तो बहुत होंगे, गवर्नमेंट का होगा, NGO भी हैं और एजेंसीज हैं जो स्किल डेवलप करते हैं, तो उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. क्योंकि बिना इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के जो भी काम करते हैं उसमें सस्टेनेबिलिटी नहीं रहता है और वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है. तो ट्रेनिंग का हो, चाहे तो किसी भी तरीके से सपोर्ट सिस्टम अगर डेवलप करना है तो ये इंस्टीट्यूशन का होना ज़रूरी है, लिंकेज होना ज़रूरी है ये इंस्टीट्यूशन के साथ. फोर्थ पॉइंट मैं लाना चाहता हूँ वो इंक्लूजन. और इंक्लूजन में हो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, सोशल इंक्लूजन एंड टेक्नोलॉजिकल इंक्लूजन, और भी लाया जा सकता है. लेकिन ये इंक्लूजन उभर करके आया. हमारे वहाँ पर
जब सर्वे कर रहे थे तभी भी आया था कि बच्चे कहते हैं कि हमें लोन नहीं मिल पाता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, और भी कहते हैं कि हम कभी कभी एक्सक्लूडेड महसूस करते हैं, सोशल एक्सक्लूजन की महसूस करते हैं। इंक्लूजन जरूरी है, वहाँ भी टेक्नोलॉजिकल डिवाइड है, वहाँ पर डिवाइड है, उसी डिवाइड को हम ब्रीज करना चाहते हैं, तो वो इसके लिए भी इंक्लूजन जरूरी है टेक्नोलॉजी के एरिया में भी। और एक अप्रोच मैं कहना चाहता हूँ जिसको ये हमारे जो सप्लाई साइड से जो गवर्नमेंट है, जो एजेंसी है, उसकी ओर से ये करना जरूरी होता है, वो सिनर्जिस्टिक अप्रोच। अगर हम गवर्नमेंट अकेले काम करे, इसमें भी हमारा बहुत पॉइंट है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अकेले काम करने लगे, CSOs अकेले काम करने लगे, इंडस्ट्री अकेले काम करने लगे, वैसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अलग से काम करने लगे, और उसमें कोई सिनर्जी नहीं होगा, कोई कोहेसिव नहीं होगा, तब तो उसमें हम जो आशा कर रहे हैं वो सब नहीं होगा। इसको मजबूत बनाना होगा, हमारा जो नेटवर्किंग है, जो लिंकेज है, तभी के लिए हो सकता है। ये भी उभर करके आया, लेकिन इसको ये TRIF ने भी बहुत जोर दे के कहा है, अपने कॉन्सेप्ट नोट में भी इसको लाया है, उनका ये अनुभव भी है, और ये जरूरी है, बहुत ज़रूरी है कि सभी प्रकार के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक साथ काम करने की ज़रूरत है। इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। ह्यूमन अप्रोच, ये मैं इसको जोड़ना चाहता हूँ। कोई भी अप्रोच अब पास्ट में देखिएगा बहुत फेलियर हुआ है। मैं एक एग्जाम्पल इसको देखा था, वो एक ऑर्गेनाइजेशन से, उन्होंने भी इस अनुभव को बहुत गहराई से देखा था। ह्यूमन अप्रोच क्या होता है? ये एक प्रकार से एंथ्रोपोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल अप्रोच है, जहाँ पर ह्यूमन बीइंग को बहुत नज़दीकी से देखा जाता है, उनको महत्व दिया जाता है। अगर आप सिर्फ जॉब करना है, चाहे तो आपको प्रोजेक्ट करना है, उसी तक ही जुड़ जाएंगे, और आदमी वहाँ है, जो व्यक्ति हैं, उनके समस्याओं को नहीं समझेंगे, तब वो फेलियर होना ही होना है। ह्यूमन अप्रोच, जिसको हम लोग यहाँ पर अपने चर्च में, स्कूल में, कॉलेज में कहते हैं कूरा पर्सनाली, ये लैटिन वर्ड है, कूरा पर्सनाली, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन, टोटल केयर ऑफ द पर्सन। जो लोग इकोनॉमिस्ट है वो लोग जानेंगे, उसमें एडम स्मिथ कहता है कि कोई भी इकोनॉमी में अगर वेल्थ क्रिएशन ज़्यादा होता है तो वही इकोनॉमी अच्छा है कहता है। लेकिन मार्शल आके कहता है कि नो, दैट इज़ नॉट एनफ। उसके अनुसार कहता है कि नो, वेलफेयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास वेल्थ है, सब कुछ है, एक्सेस नहीं है, वेलफेयर नहीं है, तो क्या मतलब हुआ? वेलफेयर फॉर होम, इट इज़ फॉर द ह्यूमन बीइंग। अगर वेल्थ भी है तो मार्शल का कहना है कि वो ह्यूमन बीइंग के लिए वेलफेयर होना जरूरी है। तो ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम जो कुछ भी है तो उसके लिए, इसीलिए पूरा पर्सनाली जो कहते हैं वो केयर फॉर द टोटल पर्सन। कोई भी डेवलपमेंट में अगर देखिएगा फेलियर हुआ है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर TRF भी अगर काम कर रहा है उस अपना एरिया में, अगर इनको ध्यान दे के नहीं चलेगा तो उसमें फेलियर होगा, क्योंकि उसको समझना पड़ता है कल्चर को, अभी बात कर रहे थे, उनकी संस्कृति को समझना होगा, ह्यूमन बीइंग का जो भी फूड है, कुछ भी उसको समझना होगा, देखना होगा। लास्ट पॉइंट ये है मेरी तरफ से, ये समरी में वो है एंश्योर एंटाइटलमेंट्स। आपने यहाँ पर प्रोग्राम और स्कीम्स की बात की, और इसमें ये जरूरी है कि वी हैव टू स्ट्रेंथन ये सिस्टम, ये इंस्टीट्यूशंस को करना होगा। और इसमें मैं 2-3 बातों को लाकर बताना चाहता हूँ कि पंचायत, अभी पंचायत का हम जोर दे रहे हैं, लेकिन पंचायत एकदम डिफंग है, काम नहीं करता है ठीक से। ग्राम सभा है, देखिए गाँव आसपास कितना ग्राम सभा बना है, अब वो अपना इंटाइटलमेंट को नहीं जानते हैं। एक स्पीकर ने कहा भी कि FRA जो 2006 का है उसको मजबूत करना है, फॉरेस्ट राइट्स का। कैसे होगा? उसमें तो ग्राम सभा मजबूत से काम नहीं कर रहा है, पंचायत से मजबूती से काम नहीं कर रहा है, हम उसको एम्पावर नहीं कर पाए हैं। तो ये बहुत लकुना है जो गांव लेवल का, ग्रास रूट लेवल का डेवलपमेंट। अगर ये नहीं होगा तो जो भी एंटाइटलमेंट्स की बात कर रहे हैं, स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, उसको आप सही रूप से उनको नहीं दिला पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दिस इज बॉटम अप अप्रोच, नीचे से होना है। आप हर चीज़ को थोपेंगे ऊपर से, वो नहीं होता है। इसलिए दिस इज द पंचायत लेवल, ग्राम सभा की जो बात कर रहे हैं, दिस इज बॉटम अप अप्रोच, नीचे से होता है। अपनी ज़रूरतों को लाते हैं, अपनी ज़रूरत महसूस करते हैं, उसके अनुसार बजट बनता है, उसके अनुसार स्कीम बनता है, उसके अनुसार प्रोग्राम बनता है। जैसे आप लोग यहाँ डिस्कस किए थे कि अभी सुने कि जॉब से हम कोर्स में जाते हैं, ना कि कोर्स से जॉब में। कहने का मतलब जॉब हम ऑलरेडी जानते हैं कि क्या जॉब है, वहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अनुसार हम कोर्स देते हैं, वैसा पढ़ाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी अगर ग्रास रूट लेवल में हम काम करना चाहते हैं, गांव के लोगों को मजबूत करना चाहते हैं, तो ये बात है कि पंचायत को मजबूत करना होगा, ग्राम सभा को मजबूत करना पड़ेगा। नहीं तो कोई एंटाइटलमेंट हम इंश्योर नहीं करा सकते हैं, प्रोग्राम इसकी हम नहीं दिला सकते हैं, क्योंकि अपने खुद ही मजबूत नहीं है, कितना दिन दिलाते रहिएगा। इसीलिए कहा जाता है किसी व्यक्ति को मछली फंसाना सिखाइए, मछली मत देते रहिएगा तो वो वैसे ही रहेगा। सबसे बेस्ट है मछली फंसाना सिखा दीजिए, जिंदगी भर खाएगा।
लेकिन ये रोज दिन एक दिन मछली दीजिएगा वो तो एक ही दिन खाएगा, अब फंसाने आता नहीं है उसको। यही फंडा कि उसमें हम उसको सिखा दें, उसको ट्रिक दें, स्किल दें, जिससे वो अपने पैर पर खड़ा हो सकता है। इसलिए यूथ लोग को एम्पावर करना, हम यूथ की बात करें, जरूरी है इस लाइन में भी कि वो मजबूत रहें, सशक्त रहें, कि इसके लिए उठ सकें, समझ सकें, और खुद जागरूक हैं तो समाज को जागरूक करेंगे और अपने इकोनॉमी, अपने लाइवलीहुड के लिए काम करेंगे, दूसरों को भी मदद करेंगे। इसी के साथ मैं सबों को धन्यवाद देता हूँ और बहुत जो इनसाइट्स आया है वो आया है हमारे लाभप्रद होगा। हम पुनः अपने सभी पैनलिस्ट को मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा ओके, है टाइम? अच्छा कितना समय है? Okay, 5 minutes to 7 to 5 minutes we have. Panelists, please be seated. If any query, any question from the audience. Yeah, अभी ऑडियंस पर है। अगर आप सुनने के बाद में कोई भी पैनलिस्ट से क्या चाहे तो आप इन जनरल भी पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई जानना चाहते हैं ज़्यादा, और बड़ो ब्रीफ में, सवाल भी ब्रीफ, आंसर भी ब्रीफ सर, सो दैट अगर 1-2 तो अटेंड कर सकते हैं तो अच्छा हो जाएगा। एनीबॉडी, एनी हैंड प्लीज? कोई भी युवा कहीं? हाँ, अच्छा सर हैं, हमारे प्रोफेसर हैं SK सिंह सर। छोटा सवाल और ये वेरी ब्रीफ, प्लीज आस्क ब्रीफ क्वेश्चन। हेलो, और आंसर भी ब्रीफ होना चाहिए। वाइस चांसलर साहब DK सिंह साहब से है। उन्होंने जो एग्जाम्पल बताया और 100% वो राइट है कि 1 से 2% आदमी यहाँ स्कूल छोड़ के कहीं दूसरे जगह जाते हैं, तो बहुत सही है। और आप कहाँ से रिसर्च किए हैं, लेकिन हम लोग भी इस चीज़ को मानते हैं कि 1 से 2% उससे अधिक नहीं है जो स्कूल लेवल यहाँ से कहीं और जाते हैं। इतना अच्छा स्कूलिंग हमारा स्टेट में है। सर एक सजेशन दिए, जो कॉलेज लेवल और टेक्निकल यूनिवर्सिटी में या हायर एजुकेशन में कुछ तो पॉइंट आपने बताया, कुछ और हाईलाइट 2 मिनट का कर दें कि और कैसे उसमें जाया जाए, किसी रेशियो आ जाए कि 2 से 3% हायर एजुकेशन में कहीं बाहर जाएं लोग, बाकी अपने स्टेट में ही रहें। थोड़ा सा हाईलाइट और सर। थैंक यू सर। ट्रेडिशनल जो हमारा मोड ऑफ जो टीचिंग है, सीधा कर दिए, सीधा सा। तो अभी का जो एरा है एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एरा है। जब तक आप उसको हैंड्स ऑन कल्चर यहाँ बिल्ड नहीं करते हैं, आप जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर यदि इस्टेब्लिश करते हैं, हमारा गुड कोलैबोरेशन चाहिए इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में। इंडस्ट्री का जो डिमांड है वो डिमांड बेस्ड हमको करिकुलम आपको लाना पड़ेगा। जब तक वो हम नहीं लाते हैं, री स्किलिंग हम नहीं करते हैं, 2 तरह का आप देखेंगे, एक स्पेसिफिक स्किल्स होता है और एक होता है आपका जो फाउंडेशनल स्किल है। जैसे फाउंडेशनल स्किल्स है आपका कम्युनिकेशन स्किल है, आपका क्रिटिकल थिंकिंग है, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, इररिस्पेक्टिव ऑफ टेक्नोलॉजी है। लेकिन स्पेसिफिक स्किल जैसे अभी का एरा है आपका IT सेक्टर्स का, अभी का एरा है आपका AI का, मशीन लर्निंग का। अब देखिए AI इज नॉकिंग योर डोर, एवरीथिंग इज नाउ गेटिंग रीडिफाइंड। अभी पूरा हम लोग क्या करते थे, प्रोग्रामिंग पर ध्यान देते थे, लेकिन ये जो AI आ गया, आप देखेंगे प्रोग्रामिंग्स का जो एक सेक्टर चल रहा था, जो जॉब प्रोवाइड करता था, वो करीब कम होगा, लेकिन ये दूसरे तरह का जॉब देगा। तो इस मार्केट को हमको पहचानना पड़ेगा। उसके ब्लॉकचेन मैनेजमेंट है। अब जैसे आप झारखंड के एरिया देखेंगे, माइंस एंड मिनरल के लिए रिच है, वेल्डर्स नहीं मिलते हैं। अब चूंकि वो ट्रेडिशनल वेल्डिंग आपका दूर हो गया, अब आपका आ गया है रोबोट बेस्ड वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, CNC पर ट्रेनिंग, ये सारे लोग मिलते नहीं हैं। तो यूनिवर्सिटी को डिफाइन करना पड़ेगा और न्यू एजुकेशन सिस्टम ने कहा भी है इट शुड बी मल्टी डोमेन एंड मल्टी स्किल्स। तो वो हमें डेवलप करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी को रीओरिएंट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम हमारे स्टेट में क्या है, यूनिवर्सिटी अभी भी उसी ट्रेडिशनल पैटर्न पर चल रहा है। इसको हाई लेवल का एक कमेटी बना के, जिसमें इंडस्ट्री के लोग रहें, कम्युनिटी के लोग रहें, सब लोग मिल के इसके करिकुलम को पहले चेंज करना पड़ेगा। वो जब तक आप रफ लैंग्वेज में कहिएगा, पुराने करिकुलम को फेंक देना होगा।
और स्टूडेंट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा इसमें। अब जिसे देखिएगा फिनटेक का जमाना आ गया, आपके यहाँ भी मैनेजमेंट थैंक यू होगा। सर, ठीक है ना? थैंक यू। टाइम कंस्ट्रेंट है सर। आपने कहा, आपका पॉइंट आपने ले आया है कि अब हम सबों को कैरिकुलम बनाने के लिए नया कैरिकुलम की जरूरत है, साथ साथ में स्टूडेंट की ओर से माइंडसेट भी चेंज करना है, तभी दोनों में मैच होगा सर। थैंक यू। नाउ ओवर टू अमिता। Thank you so much, everyone. Now we have a 2-minute Pan IIT video which will be presenting, in front of you all. So, if you could play, thank you. Biggest challenges India faces is in the area of providing equal opportunities to all sections of society. Skill development is one initiative which brings equal opportunities to all. पैन IIT एलुमनी रेस फॉर इंडिया फाउंडेशन राष्ट्र के निर्माण में IITian भावना से ओतप्रोत ITI एवं गुरुकुल का संचालन, जो कि राज्य सरकार के उपक्रम से बनाया गया गैर लाभकारी संयुक्त उद्यम है, हमारी प्रथम विशेष प्रयोजन वाहिनी के रूप में कल्याण विभाग झारखंड सरकार के तत्वाधान में संचालित ITI कौशल कॉलेज एवं कल्याण गुरुकुल परियोजना के माध्यम से सुनिश्चित रोजगार, 100% कौशल ऋण की सुविधा, कार्यस्थल आधारित बुनियादी प्रशिक्षण व्यवस्था, पूर्व सेनाधिकारी के नेतृत्व में आवासीय सुविधा के साथ देखरेख की जाती है। We are dealing with skilling of the vulnerable, we need to bring in the best in the system. The kind of public-private partnerships that are required in skilling, where we have to bring in employers, good quality delivery agencies and governments together. This is perhaps one of the best examples of this kind of partnership. So, in other words, if one has to create an IIT ecosystem for skilling, this is perhaps the best way to. कॉन्फिडेंस हमको गुरुकुल दिया है सर। एस्पिरेंट जो निकल के गए हैं वो अच्छी नौकरी भी कर रहे हैं और गुरुकुल के एस्पिरेंट्स विदेश तक गए हैं। आज अगर गुरुकुल में अगर नहीं होता, ना ही मैं दुबई को देख पाता, ना ही मैं 35 से 40 हजार में कमाता। नर्सिंग कौशल कॉलेज है। कॉलेज बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें फैसिलिटी ज़्यादा है और यहाँ थ्योरी क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि इसमें हाई टेक्नोलॉजी के द्वारा पढ़ाया जाता है। जैसे कि सिमुलेटर है, यहाँ वार्ड बनाए गए हैं, जैसे प्रैक्टिस वार्ड है, ICU वार्ड है। मैं फर्स्ट स्टेट टॉपर रही हूँ और ये मेरे लिए बिग अपॉर्चुनिटी है। अपोलो होम केयर के द्वारा दिया जा रहा है। कौशल विकास कार्यों से ये जुड़े हुए हैं। कई बच्चों को विभिन्न संस्थानों में नौकरियां भी प्राप्त हुई, रोजगार भी उनको मिला है। आज प्रजा फाउंडेशन को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सरकार के एक अभिन्न अंग के रूप में काम कर रहे हैं। झारखंड में अपनी योजनाओं के माध्यम से हमने यहाँ के युवा वर्ग की आकांक्षाओं के अनुसार हुनर के साथ साथ रोजगार के तर्ज पर कार्य किया और उन्हें अल्प अवधि में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देकर रोजगार के स्वर्णिम अवसर प्रदान किए। Thank you, everyone. Now, I would like to request the team to present a token of appreciation to the panelists who have joined us for this session. I thank them for their time and valuable insight. Thank you, sir. Please give them a big round of applause.
Thank you, everyone.